students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is the green plants. The plants that you see every day in your day-to-day life and which are really helpful for us. You will be aware about parts of a leaf, uses and storage of food in plants, interdependence of plants and animals, how plants prepare food, flow of energy in nature and balance in nature. These are the 6 key points that we are going to learn about in this chapter. So let's begin. Most of the plants are green in color because of a green pigment present in them. This green pigment is called chlorophyll. Chlorophyll is present in all the green plants of the plant like leaves and stems. Chlorophyll helps a plant to make its food. Let's know more about leaves of a plant. तो आपको जो आसपास जितने भी plants दिखाई देते हैं which are green in color. So the green color which is present and you see in the plants is because of a pigment, green pigment, and this green pigment's name is chlorophyll. Because of chlorophyll you see the plants which are green in color. अगर plant में chlorophyll नहीं होगा तो उनकी जो leaves यानी कि पत्तियां हैं वो भी green नहीं होंगी. Now let's learn about parts of a leaf. Different parts of a leaf are, सबसे पहला जो part होता है it is called leaf stalk. The part by which leaf is attached to the stem is called the leaf stalk or petiole. तो आप कभी भी next time जब plant को notice करेंगे तो stem के साथ जब leaf attached होती है तो stem और leaf जिस middle part से attached होती है that part is known as leaf stalk या फिर उसे petiole भी बोलते हैं. Both are same. Next is leaf apex. The tip of the leaf is called leaf apex. ये जो tip होता है this is known as the leaf apex. Apex का मतलब होता है जो top position पे होता है. And this thing, ये जो पतली सी rib बाहर की तरफ निकली हुई है जो leaf और stem को जोड़ के रखती है it is known as leaf stalk या फिर petiole. Next is leaf blade. The broad and flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina. ये जो आपको ऊपर का part दिखाई दे रहा है which is flat, this part is known as a leaf blade या फिर lamina. Both are again same. To the underside of lamina of a leaf has many tiny openings. These tiny openings are called stomata, singular stoma. अब ये जो आपका ऊपर का portion है फ्लैट पार्ट है दिस इज नोन एज लेमिना. इसी की अंडरसाइड में, अंडरसाइड का मतलब क्या होता है, इसी लीफ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. इस तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा. इन्हीं टाइनी पोर्स को बोला जाता है स्टोमाटा. सिंगुलर फॉर्म में इसे बोलते हैं स्टोमा. स्टोमाटा का काम क्या होता है, जितनी भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आपका स्टोमाटा के थ्रू ही होता है जो अंडर साइड पे प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज मिडरिब. ये जो बीच की रिब आ रही है दिस इज द मिडरिब और मिडरिब ऑफ द लीफ. द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब. एंड नेक्स्ट इज साइड वेन्स. ये जो मिड रिब्स के साथ साइड में आपको लाइंस दिखाई देती हैं दीज आर द साइड वेन्स. Many veins emerging from the mid rib spread out on the lamina of a leaf. These veins are called side veins. तो lamina है flat, उसके बाद आपका बीच का पोर्शन आ जाता है जो आपकी मिड रिब होती है. मिड रिब के साइड में ये जो आपके पोर्शंस बहुत सारी लाइंस इमर्ज होती हैं दिस इज नोन एज साइड वेन्स. More to know. The midrib and side veins have small tube-like structures in them. These are, number 1 is xylem. It carries water and mineral salts from the roots to the leaves. And second is phloem. It carries food from leaves to all the other parts of the plant. तो midrib जो होती है and the side veins which are on the lamina, इसमें आपके अलग-अलग structures होते हैं. सबसे पहला है xylem and the another one is phloem. जो जाइलम होता है वाटर और मिनरल्स को रूट्स के पार्ट से पूरे प्लांट्स में लेके जाता है. फ्लोएम का काम क्या होता है, ये जितना भी फूड होता है वो लीव्स तक और बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है. नाउ लेट्स लर्न हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. Plants prepare their food by the process of photosynthesis, the process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide, chlorophyll and water in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis is a combination of two words. Photo means light and synthesis means to put together. Now, सबसे पहला जो process से plants अपने लिए खाना बनाते हैं that process
is photosynthesis. What happens in this process? इस process से क्या होता है, जितना भी खाना बनाना होता है plants को, वो बनाते हैं with other factors. कौन से factors होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है. उसमें जो फोटो वर्ड होता है, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो नेचुरल सी बात है कि सनलाइट की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी. फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, टू असेंबल द थिंग्स. दे असेंबल ऑल दीज फोर फैक्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे प्रिपेयर देयर फूड. इन चारों में से एक भी चीज अगर मिसिंग होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे. As sunlight fall on the leaves, it is trapped by chlorophyll present in leaves. Leaves start the process of photosynthesis by converting water and carbon dioxide and simple sugars like glucose with the help of the solar system. Solar energy trapped by chlorophyll. In this process, oxygen gas is produced which is released into the air by stomata. तो कैसे process start होता है? जो आपका chlorophyll present होता है, that is why it is said only the green plants can make their own food. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं एंड दे कैन नॉट मेक देयर फूड. वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. ये क्लोरोफिल जो लीफ में प्रेजेंट होता है, यही सनलाइट को ट्रैप करता है और उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है जहां पर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उनको सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज होते हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है सोलर एनर्जी के साथ. व्हाट इज द सोलर एनर्जी? द सोलर एनर्जी इज नथिंग बट द सन्स लाइट, सन्स एनर्जी. उसके बाद आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जो एयर में स्टोमेटा, जो टाइनी ओपनिंग्स लेमिना की अंडर साइड पे होती है, उसके थ्रू एयर में सस्पेंड हो जाती है. आफ्टर फूड इज प्रिपेयर्ड, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Excess water is also released in the air by stomata as water vapor. The process of photosynthesis can be expressed as carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll and sunlight gives out glucose plus oxygen. अब स्टोमेटा का क्या काम होता है? गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है. जो आपका सिंपल एक इक्वेशन है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस काम करता है. इट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight will give you glucose plus oxygen. More to know. Leaves of a plant are capable of performing photosynthesis. Thus, leaves are called the food factories of plants. अब जैसे घर में किचन में खाना बनता है, उसी तरीके से plants में leaves वाले portion में खाना बनता है. That is why leaves are known as the food factories of plants. Now let's try out. Aim. To show that sunlight is necessary for photosynthesis, materials required: a potted plant, beaker, spirit, iodine solution and dropper. तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपके लिए photosynthesis perform करने के लिए sunlight is very very necessary. What are the materials required? You need a potted plant, a beaker, a spirit, iodine solution and dropper. Now let's begin with the procedure. Keep the potted plant in a dark room for few days away from the sun. Keep it watering. अब आपको कुछ दिनों तक क्या करना है, आपको पॉटेड प्लांट लेना है, डार्क रूम में रखना है जहां पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंचे और उसको पानी आपको देते रहना है. Pluck a leaf of this plant and put it in a test tube. Pour spirit to cover the leaf completely. Now put the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color of the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out leaf from the test tube and wash in the water. Now put it in a dish and pour some iodine solution over it. अब इसी में से आपको एक लीफ निकालनी है, टेस्ट ट्यूब में उसे डालना है, उसके ऊपर आपको उसको कम्प्लीटली स्पिरिट से कवर कर देना है. बीकर को आधा पानी से भर देंगे, उसमें आपको ग्रीन कलर डालना है और उस स्पिरिट के साथ उसको मिक्स कर देना है. अब लीफ को बाहर निकालना है, टेस्ट ट्यूब से वाटर से धो देना है और उसको आपको एक डिश में रखना है और उसके ऊपर आपको आयोडीन का सोल्यूशन भी डाल देना है. जैसे ही आप आयोडीन का सोल्यूशन डाल देंगे, नाउ यू हैव टू सी द ऑब्जर्वेशन. द कलर ऑफ द लीफ रिमेन्स कलरलेस. जो कलर होगा लीफ का वो कलरलेस रहेगा, यानी कि कोई कलर आपको उसमें नहीं दिखाई देगा. What is the explanation for this? It is because starch gives a blue-black color with iodine solution, but as the leaf was taken from the plant which was kept in a dark room, hence no starch was formed by the leaf. Conclusion: in the absence of sunlight, the process of photosynthesis did not take place in the leaf, hence no food, that is starch, was
formed. It shows the sunlight is necessary for the process of photosynthesis. क्यों हुआ ये? क्योंकि आपका जो कलर चेंज होता है आयोडीन सोल्यूशन का वो तभी होता है जब आपका स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है आयोडीन सोल्यूशन डालने पे। लेकिन ये लीफ क्योंकि आपकी डार्क रूम से आई थी, कोई भी सनलाइट नहीं पहुंची थी, ग्लूकोज में आपका कन्वर्ट हुआ ही नहीं था, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ था, ग्लूकोज नहीं था उसमें, दैट इज व्हाई इट डिडंट हैपन। हेंस इस प्रोसीजर से आपको, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलता है कि अगर आप सनलाइट नहीं प्रोवाइड करोगे प्लांट को तो लीव्स खाना नहीं बना पाएंगी। नाउ सेकेंड एम, to show that water moves up through the stem. Materials required: a plant with roots and having a white colored flower, red ink, a beaker and some water. Procedure: wash the roots of the plant properly, fill the beaker half with water and add the red ink to it and mix it well. Dip the roots of the plant in this water and let it stand for a day. अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें पानी जब आप डालेंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है स्टेम्स के थ्रू। आपको प्लांट चाहिए जिसमें आपके रूट्स प्रेजेंट होने चाहिए, व्हाइट कलर का उसमें फ्लावर होना चाहिए, रेड इंक आपको चाहिए, बीकर चाहिए एंड यू हैव टू गेट सम वाटर। अच्छे से प्लांट्स की रूट्स को आप धो देंगे, बीकर में आधा पानी डाल देंगे, रेड इंक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। रूट जो होगी आपकी प्लांट की उसको आपको डिप कर लेना है वाटर में और एक दिन के लिए आपको उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। What is going to be the observation? A white flower gives a tinge of red color. Also, cut a slice of the stem. Red color is visible inside the stem. Conclusion: it shows that red colored water is absorbed by the roots and reaches the flower by the stem. Hence, it is proved that water moves up to the stem. अब क्या ऑब्जर्व करेंगे आप नेक्स्ट जब देखेंगे कि आपके जो व्हाइट कलर का फ्लावर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ हैज दैट हैपेंड? क्योंकि वाटर में जब आपने रेड इंक डाला था वो मिक्स हो गया, रूट्स आपने डिप करे, एक दिन के लिए छोड़ दिया, रूट्स ने अब्जॉर्ब करा और स्टेम्स के थ्रू रेड कलर आपका ऊपर तक गया जिसने आपके व्हाइट कलर के फ्लावर को रेड बना दिया। स्टेम को अगर आप बीच से भी कट करेंगे तो उसमें भी आपको रेड कलर की जो इंक है वो आपको विजिबल हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड कि वाटर जो होता है वो रूट्स के थ्रू स्टेम्स में अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। Use and storage of food in plants. The food produced by leaves of a plant is utilized by the plants as follows. Number one, plants receive energy from this food which is used by the plants in its daily activities like absorption of water, transportation of mineral salts and water etc. क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पे आपका खाना स्टोर होता है प्लांट में, ये जो खाना रिलीज होता है ये इससे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है जो डेली बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं प्लांट्स की, एब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का, ट्रांसपोर्टेशन मिनरल हो गया सॉल्ट्स का, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। सेकेंड, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आप नोटिस भी करेंगे अगर तो आपके जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसमें आपकी नई लीव्स आती हैं, नए फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रो करवाने के लिए यानी कि प्लांट के डेवलपमेंट के लिए उनको खाने की जरूरत होती है और इस खाने से उनको एनर्जी मिलती है। Third is extra food is stored by the plants in the various parts such as roots, stems, leaves, fruits or flowers. This energy is stored in the form of starch. We eat these plant parts as fruits and vegetables. अब आप डेली बेसिस पे जो खाना आप खाते हैं जिससे आपको प्रोटीन, विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये जो होता है ये प्लांट्स का ही एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो इसी फॉर्म में स्टोर होता है, फ्रूट्स के फॉर्म में, ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, स्टेम्स वाले पार्ट पे होता है, रूट्स वाले पार्ट पे होता है, ब्रांचेस वाले पार्ट में होता है। ये जितना भी आप खाना खाते हैं किसी भी फॉर्म का, ये प्लांट्स का एक्स्ट्रा एक्सेस फूड होता है जो प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करते हैं, जो इन सारे फॉर्म्स में स्टोर हो जाता है। Evaluate yourself. Complete the following sentences. Now here are a couple of questions जिनके बारे में अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इन्हीं को आपको कंप्लीट करना है। Flow of energy in nature. For all living beings of our planet, sun is the only source of energy. Energy from the sun is called solar energy. The solar energy is converted into food by plants during the process of photosynthesis. अब जितने भी living creatures हैं, be it plants, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, सभी को सन की ज़रूरत होती है। ये जो सन की एनर्जी है ये आपको, इस सन एनर्जी को बोला जाता है सोलर एनर्जी, और प्लांट्स भी इसी की मदद से खाना बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। व्हेन दिस फूड इज कंज्यूम्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे रिसीव
this energy. Thus, it is the solar energy which is transported to all the living organisms as food. जैसे ही सन की रोशनी पड़ती है, जितने भी living beings होते हैं उसे absorb करते हैं and they get their food in this form. Now let's see what is the interdependence of plants and animals. How are animals and plants interdependent? How are they dependent on each other? Both plants and animals depend on each other for their survival. Animals need food to eat and oxygen to breathe. The plants give this food and oxygen to animals. Plants need carbon dioxide to prepare food. Animals breathe out carbon dioxide. This is used by plants. Thus, both plants and animals depend on each other. अब human beings की अपनी अलग demands हैं, plants की अपनी अलग demands हैं. Human beings को खाना चाहिए होता है, oxygen चाहिए होता है, जो plants उनको provide करते हैं. ऑन दी अदर हैंड प्लांट्स को ज़रूरत होती है अलग अलग सनलाइट वगैरह वगैरह वाटर की, लेकिन इनको एक गैस की ज़रूरत होती है विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन बींग्स जब रिस्पायर करते हैं, व्हेन दे ब्रीथ आउट, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स. अभी हमने पढ़ा था CO2 की भी उनको ज़रूरत होती है. तो इस तरीके से प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होते हैं. बैलेंस इन नेचर. A balance needs to be maintained between the number of plants and animals. What will happen if there is a sudden increase in the number of animals? Plants may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. Or if there is a sudden increase in the number of plants, the carbon dioxide breathed out by animals may not be enough for the प्लांट्स. तो बैलेंस की जरूरत होती है, क्योंकि अगर एक भी थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता है तो सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा बुरी तरह हिल जाती है. अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या फिर एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी प्लांट्स की सप्लाई रुक जाएगी. तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सिमिलरली, इफ देयर इज अ सडन decrease in the numbers of either plants or animals, it will disturb the balance in nature. To maintain this balance in nature, we have to protect both plant and animal life. Under wildlife protection programs, wild animals are given special protection in forest reserves and sanctuaries. Programs like Van Mahotsav help promote the planting of trees. People are made aware of the harmful effects caused by the continuous cutting down of trees. If life on earth has to go on, a balance in nature must be maintained. तो सब चीज़ें, इकोसिस्टम, जितनी भी चीज़ें नेचर ने प्रोवाइड करी है वो एक बैलेंस में करी है. इस बैलेंस को मेंटेन करना ह्यूमन बींग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एनिमल्स एंड प्लांट्स कांट डू दैट ऑन देयर ओन. तो ये ह्यूमन बींग्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर, जितने भी डिजास्टर्स आपको सुनने को मिलते हैं वो इसी इम्बैलेंस की वजह से ही मिलते हैं. अब अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे यहाँ पर एक स्कीम गिवन है आपको विच इज़ वन महोत्सव, जिसमें आपके बहुत सारे ट्रीज अलग अलग लोकेशंस पे इंडिया में ही लगाए जाते हैं. अगर लाइफ अर्थ पे कंटिन्यूड रखनी है तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. Now let's learn some terms. Stomata, tiny openings underside the lamina of a leaf. Chlorophyll, the green pigment present in the green parts of a plant. Photosynthesis, food making process in plants. Solar energy, energy of the sun. Stomata, lamina का underside होता है, tiny pores होती है. Chlorophyll is the green pigment which is present in the green plants, जिसकी वजह से plants का color green होता है. Photosynthesis is the process जिससे वो अपना खाना बनाते हैं plants, and solar energy is the energy from the sun. So students, here comes the end of this chapter. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इसकी जितनी भी exercises हैं आप खुद से करिए.